Hello everyone. I hope you all are happy and healthy at home and enjoying online studies. And I think कि जितना आपके पास नॉर्मल स्कूल रूटीन में टाइम होता था आपके लिए पढ़ाई के लिए आपके पास, अब ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड आपके पास उससे ज़्यादा टाइम है क्योंकि आप सारा टाइम घर में ही हैं. So that means you can spend more time on studies now, and I hope you all are doing that. So let's come to the again chapter quadratic equation. We are doing again important questions. Till now we have done 3 parts, part 1, part 2, part 3. Now this time we are taking part 4. I am giving you some very important question, and these are today today the questions we are doing, they are very important from competitive point of view also. So let's start now. I have written the first question here. A peacock is, you can note down the question. A peacock is sitting on the top of the pillar which is 9 meter high. From a point 27 meter away from the bottom of the pillar, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock pounces on it. उस पे झपटता है. If their speeds are equal, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. If their speeds are equal, snake की स्पीड और peacock की स्पीड दोनों की इक्वल हैं. At what distance from the hole is the snake caught? This we will do now. Now let's make the diagram of this question. We were given a pillar 9 meter high. ये pillar बना लिया. This is the ground, and at the top of the pillar peacock is sitting. The height of the pillar is 9 meter. Or suppose at any instant snake was here. Snake इस point पे है and snake is going to its hole, and where that hole is, under that base of the pillar. यहाँ पे उसका होल है और वो सीधा होल की तरफ जा रहा है. And at this point peacock seen this pillar, this snake now. Snake अपने होल की तरफ जा रहा है और पीकॉक इसको पकड़ने के लिए आएगा. Now suppose snake यहाँ पे जब उसने देखा, पीकॉक चल पड़ा उसको पकड़ने के लिए, snake अपने होल की तरफ जा रहा है. Suppose at this point, say at this point the snake is caught. यहाँ पे snake पकड़ा गया पीकॉक ने. The distance covered by the snake before he caught SC, and what is the distance covered by the peacock? That is AC. Now see very carefully. हमें दिया था कि the both peacock and snake, they have same speeds. They have same speeds. अब सिंपल सी बात है कि अगर दो लोग सेम स्पीड से रन करते हैं तो दे विल कवर सेम डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम. सो यही काम यहाँ पे हो रहा है. Distance covered by the snake SC, distance covered by the peacock AC. As they are moving with same speed, they will cover same distance SC. This distance SC will be equal to the distance covered by the peacock. इन दोनों के distance covered same होंगे. Now इसने चलना शुरू किया था जब snake को इसने इस पॉइंट पे देखा था, तो दोनों मूव कर रहे हैं. ये इधर को, ये नीचे को आ रहा था इसको पकड़ने को. सो दे विल कवर सेम डिस्टेंस. लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्नेक बिफोर कॉट इज x. देन ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर्ड बाय द पीकॉक इज ऑल्सो x. इफ SC is x, then SB we are given 27 meter. Then remaining distance is 27 minus x meter. Now the question is very open. We have a right angle triangle here. In this right angle triangle we will apply Pythagoras theorem to get the quadratic equation. Solve करेंगे and then we will get the answer. Let solution first of all. Height of pillar, just formalities which जो हमें complete करनी ही है. AB. Let initial position of
position of snake. S is S, and peacock is sitting at the top of the pillar. ठीक है, ये फॉर्मेलिटी है जो हमें लिखना ही पड़ेगा ये चीज़, उसके बाद सीधे कैलकुलेशन पे जंप नहीं कर जाएंगे आप, ये ध्यान रखना है. लेट एंड वन मोर थिंग, देयर स्पीड्स आर इक्वल. स्पीड्स and their speeds are equal. So therefore the distance covered by them will be same. SC equal to AC, where C is the point. C कौन सा पॉइंट है जहां पे स्नेक पकड़ा गया है. C is the point where the snake is caught, right? SC equal to AC, say each equal to X, like I have mentioned in the diagram. So therefore BC will be equal to 27 minus X meters. Now we'll take triangle, apply Pythagoras theorem. हमें quadratic मिलेगी, and we'll solve that quadratic equation after that. Now in right triangle ABC, by Pythagoras theorem, AC square is equal to BC square plus AB square. AC is X, BC is 27 minus X plus AB, that is 9. So this is a माइनस बी होल स्क्वायर. ए माइनस बी होल स्क्वायर जब भी ऐसी आइडेंटिटी कोई आती है तो आइडेंटिटी मेंशन ज़रूर करनी है आपने बिफोर अप्लाइंग दिस. कौन सी आइडेंटिटी है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ज़्यादातर बच्चे 2ab वाली टर्म खा ही जाते हैं बीच में से, तो ये आप लिखेंगे अगर आपने आइडेंटिटी मेंशन की होगी तो. ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2 into A into B plus 9 square is 81. X square plus 27 square याद है तो well and good, नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा. It is 729. और अगर आपने अलजेब्रा में कैलकुलेशंस फास्ट करनी हैं तो आपको 30 तक के, फ्रॉम 1 to 30 तक के स्क्वायर्स एंड एट लीस्ट 15 तक के क्यूब्स याद हों तो आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है. 27 का स्क्वायर पता था, लिख दिया, नहीं पता था तो निकालना पड़ेगा. तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 मिनट फॉर दैट आल्सो. सो ये 1 मिनट आपका बच सकता है. 54x plus 81. नाउ सी टेक दीज x टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड. एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, एक इधर से आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54x एंड हियर 729 प्लस 81. व्हाट हैपन्स हियर? देखो इजी हो गया काम, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कट गई हमारी. 54x 9 1 10 8 10 1 11 and 7 1 8. Now 54x equals to 810. So x equals to 810 over 54. अब आप काटें इसको, 9 से कट रहा है, 9 6 54, 9 9 81 90, और ये भी कट जाएगा 15 6. सो व्हाट कम्स वैल्यू ऑफ x? 15 मीटर्स. और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट. सो द डिस्टेंस इज आस्किंग एक्चुअली BC. क्वेश्चन हमसे ये पूछा है इसने, तो एंड में, सो देयरफॉर BC, व्हाट इज BC इक्वल टू 27 माइनस x, व्हाट इज दैट? 15, सो दैट इज 12
मीटर. सो दैट मीन्स 12 मीटर्स डिस्टेंस कवर करना उसको बचा हुआ था जब उसको पीकॉक ने पकड़ लिया. दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. Now we'll take the second question. This is very important question for you. Question is, a lotus is, आप नोट डाउन कर लेना इसको, a lotus is 2 meter above the water in a pond. Due to wind, the lotus slides on the side and the only stem completely submerges in the water at a distance of 10 meter from the original position. Find the depth of the water in the pond. ध्यान रखना, due to wind, the lotus slides on the side and the only stem completely submerges in the water. Now we'll make the diagram to understand this question. Now see the diagram of this question. Say this is the pond. ये pond है, ऊपर का बेस है, बॉटम. सो दैट मीन दिस इज द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड. हमसे पॉन्ड की डेप्थ ही इसने पूछा हुआ है. एंड जो वाटर से अबव कितना है लोटस, वी आर गिवन इट इज 2 मीटर. द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, रिमेंबर इसकी जो रूट्स होंगी वो कहाँ होंगी, वो तो ऑब्वियसली बॉटम पे होंगी. बीच में हवा में तो कहीं पानी में लटक नहीं रही होंगी, वो बॉटम पे हैं. सो विच इज द हाई डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, दैट इज BC. और ये डेप्थ ऑफ द पॉन्ड मैं अज्यूम कर लेता हूं, जो निकालना है इससे, इट इज x. Depth of the pond is x meters obviously, and above the water level it is 2 meter. Now what happens, ये है पॉइंट अब समझने वाला. Due to the effect of wind, जब विंड चलती है तो ये स्लाइड कैसे करता है. देखो सपोज यहाँ पे है, ये है इसकी रूट्स और यहाँ तक ये है ऊपर पानी के. स्लाइड ऐसे करेगा, ध्यान से देखना प्लीज. दिस वे इट विल स्लाइड. ठीक है, ऐसे स्लाइड करेगा है. और क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्लाइड इस वजह से करेगा कि इसकी ये जो पूरी स्टेम है ये पानी में सबमर्ज हो जाती है और पानी से बाहर सिर्फ लोटस रहता है, बाकी सारी स्टेम सबमर्जेस इन द वाटर. दिस वे ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, ऐसे स्लाइड करेगा है. ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा इस पॉइंट पे ये स्लाइड करके. सो हाउ इट स्लाइड्स. और अगर एक चीज़ और आपने समझनी है, और ये दिया है कि कहाँ पे सबमर्ज होता है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द बेस. इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ D. ठीक है, जो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में समझना है वो क्या है, वही सबसे मेन है. बाकी क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है. जब ये मैं इसको ऐसे मूव करवा रहा हूँ, रिमेंबर अगर मैं इसको पूरा मूव करवा दूँ ऐसे तो क्या बनेगा, we will get a circle. ये पूरा अगर इसको मूव करवा दिया जाए तो क्या बनेगा, सर्कल. और उस सर्कल में ये क्या है, दिस इज द रेडियस. सो उस सर्कल में रेडियस कितना है, सी x + 2. और यहां पे अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर लूं, अब ज्वाइन D with C. पूरा बनाना नहीं है सर्कल्स, वो सिर्फ समझने के लिए है, मेरे काम का सिर्फ इतना है. Then what is CD? So remember जिस वे से ये मूव किया था तो CD is also the radius of that circle. What was the radius? X + 2. So this CD is also X + 2 meters. यही चीज़ है इस क्वेश्चन में समझने वाली, सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, CD is X + 2 meters. अब देखना ध्यान से, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखी, कौन सी, BCD. सिंपली वी विल अप्लाई नाउ पाइथागोरस थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, विल गेट द आंसर. ये इसका डायग्राम का मेन पार्ट है, इसको समझना है. जब इसको मैंने मूव किया, जब ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विंड ये मूव किया, स्लाइड किया, तो ये वाला CD एंड CA विल बी सेम एज दे आर रेडियस ऑफ द circle. Now let us take in triangle BCD. This is a right angle triangle. क्या करना है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है. ठीक है, in triangle BCD, CD square equal to, that is BC square plus BD square.
जितना आपने डायग्राम एक्सप्लेन किया होगा ज़्यादा, उतना उसका थोड़ा राइट अप कम लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डायग्राम को मैक्सिमम वे से एक्सप्लेन कर दें, काफ़ी हो जाता है। जैसे मैं यहाँ कुछ नहीं मेंशन कर रहा हूँ, अंडरस्टूड है डेप्थ ऑफ दिस इज एक्स, देन दिस इज 10 वो दिया था, दिस इज ऑल्सो एक्स प्लस 2 फ्रॉम हियर। सो सी डी एक्स प्लस 2, बी सी एक्स, बी डी 10, a प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी जरूर लिखना, 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स स्क्वायर प्लस 100। पहला काम तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, 4 प्लस 4x इक्वल टू 100, सो 4x इज इक्वल टू 100 माइनस 4, सो 4x इज इक्वल टू 96, x 96 upon 4, what is that? 24. In the end you will write the answer. Therefore depth of the pond, depth of the, remember x ही तो हमने depth लिया था, depth of the pond is how much? It is 24 meter. This is the solution. Now again we'll take the very important question again. The question is, a teacher on attempting to arrange the students for mass drill in the form of a solid square, इसका मीनिंग जरा समझना है, solid square, in the mass of the solid in the form of solid square, found that 24 students were left over. टीचर बच्चों को एक सॉलिड स्क्वायर में खड़े करता है। सॉलिड स्क्वायर डजंट मीन कि सिर्फ बाउंड्री पे ही खड़े करने हैं बच्चे, यहाँ भी अंदर भी खड़े होने हैं बच्चे, यहाँ सारे, दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड स्क्वायर। ठीक है, इस वजह से बच्चों को खड़े करना है। इसका डायग्राम अभी बनाएंगे हम। एंड इन द फर्स्ट केस, अगर वो कुछ बच्चों को अरेंज करता है सॉलिड स्क्वायर में, फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट ओवर, 24 स्टूडेंट्स बच जाते हैं। जितने बच्चे सॉलिड स्क्वायर में अरेंज हुए वो हुए, प्लस 24 बच गए बच्चे। Second case, when he increased the size of the square by 1 student. Suppose करो ये स्क्वायर x का था, x का मतलब क्या हुआ कि x स्टूडेंट, इसकी साइड मैंने अज्यूम करी x, राइट, साइड इज अज्यूम्ड x, तो साइड इज अज्यूम्ड x, तो रिमेंबर ऑल साइड्स x, तो इसका एरिया क्या बनेगा, दैट विल बी x square. When he increased the size of the square by 1 student, now यहाँ पे अब एक रो में x खड़े किए थे, अब एक रो में कितने हो जाएंगे, x plus 1. In that case what happens, he found that he was short of 25 students. अब अगर ऐसा करा जाए तो 25 students कम हो जाते हैं। Find the number of students. नाउ सॉल्यूशन, पहले तो ये अज्यूम कर लें, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू y. अब फर्स्ट केस, देयर आर 2 केसेस रिमेंबर, एक केस में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, एक केस में बच्चे कम होते हैं जब एक सॉलिड स्क्वायर बनाया जाता है। मैंने अज्यूम कर लिया, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड, जो स्क्वायर अरेंजमेंट में बच्चे खड़े किए हैं, साइड ऑफ दैट स्क्वायर इज से x, क्योंकि ये सॉलिड स्क्वायर है, दैट मीन x रोज हैं और x ही कॉलम्स हैं। सपोज करो 8 रोज हैं और 8 ही कॉलम्स हैं, तो 8 8 आर कितने बच्चे कितने हो जाएंगे, अगर 8 का स्क्वायर बनाएंगे सॉलिड स्क्वायर, 8 रोज हैं और 8 कॉलम्स हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 8 8 64 टोटल बच्चे इस स्क्वायर अरेंजमेंट में आ जाते हैं। यही चीज़ समझने वाली है। अब मैंने अज्यूम किया कि से x रोज आर देयर, अगर x रोज आर देयर तो स्क्वायर अरेंजमेंट में ऑब्वियसली कॉलम्स आर ऑल्सो x, तो बच्चे कितने आ जाएंगे जो इस सॉलिड स्क्वायर में अरेंज होंगे, x इंटू एक्स, दैट इज x स्क्वायर। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सॉलिड स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। इन दिस केस वी आर गिवन दैट कि अगर ऐसा केस हो तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लेफ्ट ओवर, 24 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट ओवर। देयरफॉर नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक तो वो जो स्क्वायर में अरेंज हो गए, कितने हुए स्क्वायर में अरेंज, x इंटू एक्स, दैट इज x स्क्वायर, प्लस 25 बच्चे और थे हमारे पास जो एक्स्ट्रा बच गए हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट से बाहर हैं, जो ये है मेरे पास इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने अज्यूम करा था y, सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। आई विल टेक
इक्वेशन नंबर 1. नाउ केस 2 विल डिस्कस. केस 2 में हमें दिया था कि साइड ऑफ स्क्वायर इज टेकन वन मोर. क्वेश्चन वाज when he increased the size of the square by one student. अब let the side of square formed one more now, x plus 1. तो बच्चे कितने हैं जो स्क्वायर अरेंजमेंट में आएंगे? x प्लस 1 स्क्वायर. छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप दे दें सेकंड केस में. अब बच्चे कितने हैं? x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 रोज आर देयर एंड x प्लस 1 कॉलम्स आर देयर. तो बच्चे कितने हो जाएंगे हमारे पास? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज x प्लस 1 स्क्वायर. नाउ ही सेज, फर्स्ट इक्वेशन आई थी x स्क्वायर प्लस 25. मैं इसको रेज करता हूँ. नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? स्क्वायर में अरेंज हुए इतने, लेकिन इसने बोला कि इस केस में बच्चे कम हो जाते हैं. एंड ही सेज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर लेस इन दिस केस? ही वॉज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स. 25 स्टूडेंट्स अब कम हो गए हैं. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस केस, ये वो जो स्क्वायर में अरेंज होने थे इतने हुए नहीं है क्योंकि बच्चे कम हैं हमारे पास. तो -25, राइट. इस केस में अगर करते इतने बच्चे स्क्वायर में अरेंज होने थे, लेकिन बच्चे तो हमारे पास जितने हैं उतने ही हैं, बच्चे कम ज़्यादा नहीं हैं. हमारे केसेस अलग अलग हो गए. जितने स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेंथ उनकी उतनी ही है. से क्लास में 40 की स्ट्रेंथ है तो बच्चे 40 ही हैं, बाकी हम अलग अलग केसेस डिस्कस कर रहे हैं. तो इस केस में अगर किया जाता तो 25 कम हो जाते. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज y x प्लस 1 होल स्क्वायर -25. जरा स्क्वायर ओपन कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x -25. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद हमने दोनों को इक्वेट कर देना है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -24. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. रिमेंबर, जितने बच्चे एक क्लास में हैं स्ट्रेंथ उतनी ही है. हम अलग अलग केसेस डिस्कस किए हैं. दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी सेम. दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2. लेट्स कंपेयर द टू इक्वेशंस. व्हाट यू कैन सी? यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल. और अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो, यू नो दैट right hand sides are also equal, because Euclid said things equal to same thing are equal to one another. So what we get? X square plus 25 equals to x square plus 2x minus 24. Luckily x square cancels and 24 को इधर ले आना. 25 plus 24, that is equal to 2x. So 49 equal to 2x. So x equals to 49 upon 2. So x is 24.5. Now there is one mistake in this solution, please note it down. In the first equation it was x square plus 24. ये solution थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेना है आपने. So x square plus 24, this is, so 24 plus 24, that is 48, and x is 48 over 2. इसको थोड़ा ठीक कर लेना प्लीज़. पहले मैंने इसको 25 ही लिख दिया था. It was actually 24. So x is 24, 48 upon 2. So x, हमसे इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर y. अब ये x की वैल्यू आपकी मर्जी है, जब आप तो आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें या सेकंड इक्वेशन में. फर्स्ट इक्वेशन में इजी लग रहा है मुझे तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा. देयरफॉर y इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन लिख दूं पहले. 24 है, बाय मिस्टेक मैंने इसको 25 लिख दिया था. x इज 24 स्क्वायर प्लस 24. अगेन वही बात जो मैंने पहले भी बताई थी कि 30 तक के स्क्वायर एटलीस्ट याद हों और 15 तक के क्यूब्स. कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं. 24 स्क्वायर 576 प्लस 24 y 600. So in the end you will write the answer. Therefore total number of students equal to
600. Now there is one very important thing. जितने भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ये सारे सिर्फ आपके क्लासरूम स्टडीज़ के लिए ही नहीं हैं. दीज आर मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो. और अगर आपने इन वीडियो से कांस्टेंट टच में रहना है तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट जब भी मैं ये कोई भी नया वीडियो किसी भी टॉपिक पे अपलोड करूं तो वो आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए. थैंक यू.